Hi everyone, good morning. I hope all of you will be fit and fine and welcome to this passage. In this passage, we will find out those words which are really tough for us and we will note down, we will discuss them in detail. So, here we go. Acceleration foretold on volatile food prices. If inflation is not tamed, there is risk to consumption and growth. Now, this acceleration word is derived from the word accelerate and accelerate का मतलब होता है verb. आप सभी ने अपनी भी गाड़ी में एक्सेलरेटर यूज़ किया होगा. सो एक्सेलरेटर वर्ड एक्सेलरेट से बना है और एक्सेलरेटर कम्स एज अ नाउन एंड ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी एक नाउन है जो कि एक्सेलरेट वर्ड से ही बना है. एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन का जो मीनिंग है उसका मीनिंग हो जाएगा तेज़ी, राइट. और जब ये वर्ब है तो इसका मतलब है तेज़ करना. एज अ वर्ब इसका मीनिंग होगा तेज़ करना एंड एज अ नाउन इसका मतलब हो जाएगा तेज़ी. एंड याद करने का बेस्ट तरीका है एक्सेलरेटर वर्ड तो हमें याद ही है. सो दिस कैन कम एज अ की वर्ड फॉर अस एक्सेलरेटर. वी आर अवेयर ऑफ इट वेरी वेल. नाउ स्पीड को एक्सेलरेट करना, दिस इज़ तेज़ करना. जैसे हम कहते हैं चलिए अपनी पढ़ने की स्पीड को तेज़ करते हैं. लेट्स एक्सेलरेट आर स्पीड ऑफ लर्निंग. सो दैट इज़ तेज़ करना. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड फाइंड आउट मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज. Now here this is foretell. Now foretell means something that is to announce for future. That is foretell. Foretell, right? Single foretell, FORETEL होता है. Foretell, TELL. Foretell verb है जिसका मतलब है to announce for future. फ्यूचर के लिए एक अनाउंसमेंट करना. दैट मीन्स भविष्यवाणी करना. भविष्यवाणी करना, राइट. फोरटेल. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है उसी तरीके से फोरटेल, फोरटोल्ड एंड फोरटोल्ड इस तरीके से यहाँ पे आपके वर्ड्स रहेंगे. फोरटेल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड. लेट्स प्रोसीड फर्दर. और इसको एक बार पहले स्पीड में हम लोग पढ़ लेते हैं. Acceleration foretold on volatile food prices. If inflation is not tamed, there is risk to consumption and growth. November's resurgence in headline retail information, while clearly not expected after the RBI just last week predicted a likely uptick, is a stark reminder of the risk volatile food prices pose. आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, जहाँ पर रुकना है वो है हमारे पंक्चुएशन मार्क्स. मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोलन, ऐसी जगहों पर हमें रुकना है, बाकी कहीं नहीं रुकना है. ये सभी हमारे नेसेसरी पॉजेस होते हैं. तो आइए एक बार इसका रीडिंग करके एक अच्छा सा आइडिया लेते हैं, फिर हम उन वर्ड्स को पिक करेंगे जो हमारे लिए टफ हैं. While the National Statistical Office's provisional reading of headline inflation shows the consumer price index rose by 5.55% year on year to a 3-month high. From October's 4.87%, food price gains measured by the Consumer Food Price Index accelerated by a steep 209 basis points to 8.7% last month. Propelling the upsurge in the food prices were cereals and vegetables and constituents of the food and beverages subgroup that logged 10.3% and 17.7% inflation respectively. Cereals that account for almost one-tenth of the CPI and logged double-digit inflation for a 15th straight month also saw a month-on-month acceleration in inflation, with rice, wheat, and the core cereal of jowar, a rural hinterland staple, all registering palpable sequential price gains. Vegetable prices were back on a boil, with a year on year inflation rate surging by almost 15 percentage points from October's 2.8%, while price gains in the perishable tomato swung from two straight months of seasonal deflation to a more than 11% year on year rate inflation last month. The extent of increase could be truly gauged from the fact that prices surged a steep 41%
from the preceding month's levels as per data aggregated on the Center for Monitoring Indian Economy's website. And the key masala essential of ginger and garlic registered more than 100% rates of inflation for the 7th and 3rd months respectively. So बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं इस पूरे पैसेज में, और एक बार में पैसेज को रीड करके हम उन वर्ड्स से अवेयर हो सकते हैं, अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि इन वर्ड्स पे हमें डिस्कशन करना है. रीडिंग लाउड वॉइस से करने से, इफ़ यू रीड लाउडली यू गेट मोर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, और पंक्चुएशन मार्क्स जैसे आप फॉलो करते हैं ऐसा ही आपका इंग्लिश बोलने का टोन भी डेवलप होता है. तो अगर आप अपने इंग्लिश बोलने के टोन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रीडिंग को बेहतर बनाएं, रीडिंग अच्छी तरीके से करें. नाउ वोलाटाइल वर्ड पे डिस्कशन हमें करना था, और वोलाटाइल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ये दो शब्द हैं. सो वोलाटाइल इज़ एन एडजेक्टिव, एंड कंप्यूटर्स में आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा. वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो नॉन परमानेंट होती है, एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो परमानेंट होती है. सो दिस इज़ मतलब नॉन परमानेंट, मतलब कुछ दिमाग में आया देन वो इरेज हो गया. जैसे मार्केट जाते समय आप बहुत से लोगों के फेसेस देखते हैं, बट वो आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं हो जाते, लेकिन आपके घर वालों के जो फेसेस हैं वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहते हैं. जब भी आप उनसे मतलब यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट देम. तो वोलाटाइल बेसिकली क्या होता है, उड़नशील होता है, मतलब पता नहीं कब उड़ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है. दिस इज समथिंग उड़नशील. जैसे कंप्यूटर में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उस पर हम जो भी इस समय मैं अगर इस फाइल को सेव ना करूं तो ऑब्वियसली दिस कैन बी इरेज्ड. तो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे हम अगर कुछ भी लिखते हैं, सो दैट इज नॉट सेव्ड. जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा दैट विल बी इरेज. जैसे मैंने यहाँ पे CD बैकस्लैश किया. सो दिस इज समथिंग दैट इज वर्किंग ऑन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और इसी को अगर मैं सेव कर दूं, इन सारी फाइल्स को सेव कर दूं, तो दिस इज हार्ड डिस्क, दैट इज रोम रीड ओनली मेमोरी. तो नॉन वोलाटाइल का मतलब है परमानेंट. इसे आप अपने स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपने कहा उसकी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, मैं उसे भुला नहीं सकता, आई कांट फॉरगेट हर, सो हर मेमोरीज आर नॉन वोलाटाइल. इस तरह से हम बोल सकते हैं. आई होप आपको इंटरेस्टिंग वर्ड मिल गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ऑन वोलाटाइल फूड प्राइसेस. तो ये जो फूड प्राइसेस हैं ये वोलाटाइल हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है. नाउ इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई. महंगाई की मार सभी लोगों को पता ही होगा, और आज के समय में महंगाई का प्राइस हाइकिंग, राइट, महंगाई बहुत से लोगों की अलग अलग ओपिनियन है. कुछ लोगों का कहना है महंगाई तो है ही नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है, वो बहुत पहले से गरीब हैं. और कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई है, इसी वजह से लोगों का सर्वाइवल कॉस्ट बढ़ गया है. आपका क्या कहना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. महंगाई वास्तव में है या ऐसा प्रतीत होता है और महंगाई नहीं है? डू शेयर योर ओपिनियन ऑन इन्फ्लेशन. और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना. बेसिकली ये वर्ब है. अब देखिए हवा भरना महंगाई से कैसे रिलेटेड है, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक तरह से वो हवा ही भर रहे हैं. ठीक है, बढ़ाना, इन्फ्लेट, फुलाना किसी चीज़ को. जैसे गुब्बारे को आपने हवा भर के फुला दिया, सो दिस मीन्स टू इंक्रीज, बढ़ाना, फुलाना. ठीक है, इसके दो मीनिंग होते हैं. बढ़ाना भी कह सकते हैं, फुलाना भी कह सकते हैं. फुला के एकदम कुप्पा कर देना. एंड इसी से एक वर्ड बना है इन्फ्लेटेड. मान लो जैसे कहते नहीं, उनकी इतनी तारीफ की कि वो फूल के कुप्पा हो गए. कुप्पा हो जाने का मतलब है प्राउड हो गए, गर्वशील हो गए, इतना ज़्यादा उनको फुला दिया गया है.
सो दिस इज़ कॉल्ड, ये वर्ड जो ओरिजिनल वर्ड है वो इन्फ्लेट ही है, और इसी से इन्फ्लेटेड वर्ड भी है. ही वॉज इन्फ्लेटेड विद हिज प्रेज, इन्फ्लेटेड अलॉट, राइट, बढ़ा हुआ. सो दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेटेड. सो आई होप ये इस वर्ड ने और आपको एनालिसिस दी होगी. एंड इसी से बना है इन्फ्लेटर, मतलब फुलाने वाला, जैसे गुब्बारे फुलाने की एक मशीन आती है. सो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेटर, फुलाने वाला. दिस इज़ फुलाने वाला, इन्फ्लेटर. सो आई होप इस पैसेज को रीड करने में आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको मिल रहे हैं. एंड इन फ्लैट, राइट, इसे हम लोग फ्लैट प्राइसेस भी कह सकते हैं. जैसे कोई लोन लेता है तो दो तरह के इंटरेस्ट लगते हैं. एक फ्लैट इंटरेस्ट लग जाता है, और एक इंटरेस्ट लगता है जो कि टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है. तो ये एक फ्लैट इंटरेस्ट जो लग जाता है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, और जो घटता बढ़ता रहता है वो थोड़ा ठीक रहता है. सो इसके बारे में आप इन्फ्लेट से ही रिलेट कर सकते हैं. अच्छा, ये जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है टेम, टेम, टेम का मतलब होता है रोकना. अगर उसे रोका नहीं गया, मतलब रोका नहीं गया, तो फिर ये बड़ा मुश्किल होने वाला है. टेम एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पालतू, और एज ए वर्ब भी ये यूज़ होता है, और उसका मीनिंग होता है कंट्रोल करना. मतलब दोनों की मीनिंग अलग अलग रहेंगे. अगर मैं टीम को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करूँ तो इसका मतलब होगा पेट, पालतू. और इसके और भी शब्द मैं कह सकता हूँ दब्बू, मतलब जो बातों, जो बहुत ज़्यादा ऑडेशियस ना हो, बहादुर ना हो, ठीक है, पालतू हो. एंड वी कैन ऑल्सो से इंसिपिड. अब जो पालतू है जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है वो इंसिपिड ही है. इंसिपिड का मतलब होता है नीरस, राइट. टीम, तो टीम को टाइम से रिलेट कर सकते हैं कि अपना टीम, कुछ लोग टाइम को टीम भी बोलते हैं. अपना टीम नहीं है इसीलिए मैं अभी दब्बू हूँ, और जब अपना टीम आएगा तो अपन दब्बू नहीं रहेगा, राइट. सो टीम यहाँ पे जब वर्ब के रूप में यूज़ होगा, दैट मीन्स टू रेस्ट्रेन और टू कंट्रोल. रेस्ट्रेन और टू कंट्रोल. अगेन फिर से यहाँ पे टीम, टीम, टीम. So this belongs to the word tim tim team. Different words are there, and this is something. Let's find out consume word is there, right? Consume से बना है consumption. Now this is again grammatical concept. Consume is there. Consume is coming as a verb, and consumption word is coming as a noun. एंड ये जो वर्ड है ग्रो और ग्रोथ, इससे भी एनालिसिस हम कर सकते हैं. दिस ग्रोथ वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब ग्रो. सो ग्रो इज द वर्ब एंड ग्रोथ इज इट्स नाउन. मीनिंग की बात करें सो दिस इज टू प्रोग्रेस, उन्नति करना. एंड कंज्यूम माने किसी चीज़ को उपभोग करना, यूज़ करना. टू यूज़ और टू ईट, दिस इज उपभोग करना. लेट्स प्रोसीड फर्दर. November's resurgence in headline retail inflation. Now सर्ज जो वर्ड है वो एक कॉमन वर्ड है, उसी से बना है सर्ज, सर्जेंस एंड रीसर्जेंस. सो सर्ज इज द वर्ब, एंड रीसर्ज ऑब्वियसली इसमें री लग गया है तो इसका एज अ वर्ब मीनिंग अलग होगा. एंड रीसर्जेंट ये इसी से एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है, रीसर्जेंट. एंड टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड रीसर्जेंस, दिस इज कमिंग एज अ नाउन. सो सर्ज का मतलब है तेज़ी से बढ़ना, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से सर्ज करना. जैसे सर चार्ज होता है, ठीक है, और सर चार्ज लगा लेते हैं. तो सर्ज मीन्स होता है तेज़ी से बढ़ना, जिसे हिंदी में कह सकते हैं उमड़ना, राइट. टू ग्रो रैपिडली, तेज़ी से बढ़ना, सर्ज, राइट. सर के आते ही चीज़ें तेज़ी से बढ़ती हैं, सिलेबस तेज़ी से भागता है,
और इसे हिंदी में हिलोरे मारना भी कहते हैं। हिलोरे मारने का मतलब है कि किसी विचार का बार बार मन में आना, हिलोरे मारना, राइट। एंड री अगर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका मतलब है फिर से तेजी से बढ़ना, रिसर्च, ठीक है। अब ये रिसर्च से संबंधित लग रहा है तो इसको हम कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं, रिसर्च। रिसर्च ना, रिसर्च का मतलब है फिर से। अब चूंकि री का मतलब ही है फिर से, री प्लस सर्च, मतलब किसी प्रोसेस का डाउन होना और किसी प्रोसेस का फिर से उसी स्पीड में आ जाना, मीन्स टू रिवाइव अगेन। और हम इसे कह सकते हैं कि फिर से उठ खड़ा होना, फिर से उठ खड़ा होना, दैट इज रिसर्च। नाउ रिसर्जेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस ओनली, तो ऑब्वियसली इसका जो सेंस होगा वो इसी से संबंधित है, जो कि फिर से बढ़ने वाला, फिर से उठ के खड़ा होने वाला, ठीक है। सो वी कैन सिंपली से रिवाइविंग, रेज्यूवेनेटिंग वर्ड भी इसमें ला सकते हैं, रेज्यूवेनेटिंग। एंड जो फिर से ग्रोइंग फर्दर हो। एंड इस तरीके की जो एनर्जी होती है वो नाउन के रूप में यूज होता है, रीसर्जेंस। सो दिस कम्स एज अ नाउन, दैट इज रीसर्जेंस। पुनरुत्थान जिसे कहते हैं, फिर से पुनरुत्थान, जैसे मकान की पुताई उताई करा देते हैं और मकान एकदम रेज्यूवेनेट हो जाता है, तो दिस इज समथिंग रीसर्जेंस। लेट्स फाइंड आउट सम मोर वर्ड्स इन हेडलाइन है। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल वर्ड बहुत ही कॉमन है, लेकिन जब इसके बारे में डिस्कशन होता है तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। एंड रिटेल एज अ वर्ब भी यूज़ होता है एंड एज अ नाउन भी यूज़ होता है। तो अक्सर ये शॉप्स में लिखा रहता है होलसेल विक्रेता, रिटेलर, रिटेल से ही बना है रिटेलर। तो ये एक सोचने वाला पॉइंट है कि भाई रिटेलर का मतलब क्या है। तो रिटेल का जो एज अ वर्ब मीनिंग है वो इसका मीनिंग है कि फुटकर में बेचना, जैसे किसी चीज़ को बहुत ही कम प्राइसेस में देना, दैट इज़ कॉल्ड रिटेल। फुटकर बेचना, छोटे छोटे अमाउंट में बेचना, टू सेल इन स्मॉल अमाउंट, राइट। होलसेल चीज़ें ना बेचना पूरी पूरी, जिसे हम लोग परचून भी कहते हैं। सो रिटेल एज अ वर्ब, इसका मतलब है फुटकर चीज़ें बेचना, इकट्ठे सब खरीद लेना और धीरे धीरे करके छोटे छोटे फॉर्म में बेचना। एंड ये तो एज अ वर्ब आ रहा है, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। और अगर मैं इसे एज अ नाउन यूज़ करूँ तो इसी का मतलब होता है परचून की दुकान। नाउ परचून का मतलब है कि फुटकर, खुदरा, इसे खुदरा भी कहते हैं, खुदरा, ठीक है। शॉर्ट सेल इसे हम कह सकते हैं, शॉर्ट मतलब बहुत ज़्यादा हैवी सेल ना करना, शॉर्ट सेल, ठीक है। रिटेल स्टोर होता है, रिटेलर होता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स होता है, रिटेलिंग, रिटेलर। सो रिटेलर खुदरा व्यापारी भी हम कह सकते हैं, दिस इज रिटेलर। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट सम मोर वर्ड्स एंड हियर वी गो। Retail inflation, while clearly not unexpected after the RBI just last week predicted. Now predict का मतलब है किसी चीज़ की संभावना देना, प्रेडिक्ट से ही बना है प्रेडिक्शन, किसी चीज़ के बारे में व्यक्त करना, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना, दैट इज प्रेडिक्ट। एंड प्रीडिक्ट, प्री मीन्स पहले से, डिक्ट माने डिक्टेशन से रिलेट कर सकते हैं, किसी के बारे में अनुमान लगा लेना, टू एंटीसिपेट, वी कैन से पूर्वानुमान, प्रेडिक्ट। एंड दिस इज प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट से ही बना है प्रेडिक्शन। अ लाइकली अपटिक, नाउ अपटिक का मतलब है, अप मीन्स ऊपर, टिक का मतलब है टिक करना, यानी कि उछाल आया है। ये शेयर मार्केट में वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हिंदी में इसे कहते हैं काफ़ी उछाल आ गया है इसके प्राइसेस में, सो दैट इज़ कॉल्ड अपटिक। सो वी कैन सिंपली टेक अप दिस वर्ड एज अ नाउन एंड इट्स मीनिंग इज
a transaction in the stock market at a price above the price of the preceding transaction. In nutshell, we can simply call it उछाल. किसी की प्राइसेस में जो उछाल आता है that is called uptick. And let's proceed further. Is a stark reminder. Now, this word is very important, and it is important as per the competition also. This is stark, and TC से बना है starker. So stark का कई मीनिंग होते हैं. Stark एज एन एडवर्ब यूज होता है, जो इसका मीनिंग होता है एकदम अलग, या स्ट्रिक्ट भी इसका मीनिंग होता है, एकदम हटके. So this is stark. So as an adverb, its one meaning is absolutely different, right? एकदम अलग. एंड जो स्टार्स होते हैं वो कॉमन तो नहीं हो सकते. स्टार्स तो स्टार्स ही हैं, ठीक है, एकदम अलग ही होते हैं. एंड अदर मीनिंग ऑफ स्टार्क इज कमिंग, जो स्ट्रिक्ट हो, राइट? दिस कम्स एज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स स्ट्रिक्ट, harsh. And there is one more word that we have learnt, that is arduous. जिसको बोलने में गला छिल जाए, arduous, right? That is stark. So I hope you must have understood. Reminder माने रिमाइंड कराने वाला of the risk volatile food prices pose. Now ये पोज वो पोज से अलग है. यहाँ पे ये पोज पिक्चर देने वाला पोज नहीं है. एंड इस पोज का मीनिंग है दावा करना, ठीक है. इसके दो मीनिंग्स हैं. किसी पिक्चर के लिए खड़े होना इज ऑल्सो इट्स मीनिंग, एंड इसका मीनिंग दावा करना भी होता है. दिस इज पोज एज अ नाउन, वे ऑफ स्टैंडिंग फॉर पिक्चर, वे ऑफ स्टैंडिंग फॉर पिक्चर. एंड पोज एज अ वर्ब, दिस मीन्स टू क्लेम फॉर समथिंग. This is to claim for something. And further we have, while the National Statistical Office's provisional. Now provisional certificate आपने सुना ही होगा कि provisional certificate अभी वो issue कर देंगे, इसके बाद आपको नया सर्टिफिकेट आपको लेना होगा. So provisional degree होता है, provisional certificate होता है. So provisional का मतलब है जो unstable हो, अस्थायी हो, that is called provisional. So this is provisional, as an adjective आ रहा है, unstable, अस्थायी. प्रोविजन एक रूल होता है, प्रोविजन पास हो गया है, सो दिस मीन्स रूल, एंड दिस इज प्रोविजनल. एंड इसी का जो एडवर्ब है वो है प्रोविजनली. नाउ एज एन एडवर्ब ऑब्वियसली ये वर्ब की विशेषता बताएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा अस्थायी रूप से, किसी चीज़ का अस्थायी रूप से होना. प्रोविजनली प्रोविजन से ही बना है. एंड प्रोविजनल एडजेक्टिव प्रोविजनली, दैट कम्स एज एन एडवर्ब. रीडिंग ऑफ द हेडलाइन, इन्फ्लेशन शोज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज राइज एंड याद होगा by 5.55% ईयर ऑन ईयर, साल दर साल. ईयर ऑन ईयर का मतलब है साल दर साल. ये भी इंटरेस्टिंग है, कई बार हमारे बोलने में आता है कि साल दर साल इसकी जो रेट है वो बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर. तो ये एक तरह की हमारे लिए फ्रीज के रूप में आ रहा है. दिस इज साल दर साल, ईयर ऑन ईयर. And to a 3-month high from October's 4.87% food price gains measure means मापना by the consumer food price index accelerated by a steep. This is an interesting, कि steep का meaning क्या है? by a steep, this is STEEP. steep से ही बना है steepy, और steep का मतलब है जो एकदम ज़बरदस्त हो, बेतुका हो थोड़ा सा. तो जो चीज़ कहते हैं इनडाइजेस्टेबल है, भाई मेरे को हजम नहीं हो रही है, सो दैट इज स्टीप, राइट? सो दिस वर्ड स्टीप कम्स एज एन एडजेक्टिव
and this means absurd, unreasonable, we can say unreasonable, जो जिसका कोई रीज़न ना समझ में आए, जो हम कह सकते हैं अतार्किक हो. तो दिस इज स्टीप एंड बेतुका. एंड एक मीनिंग इसका और भी होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ढाल में होना, स्टीप. एंड स्टीप एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को एकदम ओत प्रोत कर देना. दिस इज कम्स एज अ वर्ब. भिगो देना, टू रिंस, भिगोना, राइट. एंड स्टीप की अगर बात करें अदर सेंस में, सो बहुत ज़्यादा ढाल में होना, स्टीप, राइट. इस पैसेज में किस कंटेक्स्ट में आ रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड स्टीपी जो वर्ड है, जो कि इसी से बना है, स्टीपी. तो स्टीपी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा, जिसका मतलब है स्लोपी, जो ढाल से काफ़ी स्लोपी हो. सो दिस इज ढालुआ. एंड स्टीपली एज एन एडवर्ब अगर यूज़ हो तो उसका मतलब आएगा तेज़ी से. देखिए धीरे धीरे मीनिंग चेंज हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एनालिसिस करें वर्ड्स की. नाउ दिस इज कमिंग रैपिडली, तेज़ी से, स्टीपली, गहराई से, तेज़ी से, सीधी चढ़ाई से. एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसी से एक वर्ब और बना है, स्टीपन. देखिए वर्ड की अगर ओरिजिनलिटी जाननी है तो वर्ड पे काम तो करना ही पड़ेगा. और स्टीपन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ढालू होना, टू बी वेरी स्लॉपी, ढालू होना. लाइक कार को चढ़ाने के लिए एक प्रॉपर ढाल बनाई जाती है, घरों में एक प्रॉपर स्टीपन किया जाता है जिससे कि लोग ऊपर आ सके, दैट इज कॉल्ड स्टीपन. सो दीज वर्ड्स आर वेरी सिंपल. अब मैं ज़्यादा वर्ड्स इसमें ऐड नहीं करूँगा, नहीं तो लगेगा कि इट हैज़ बिकम क्वाइट बोरिंग. लेट्स प्रोसीड. 209 पॉइंट बेसिस टू 8.7% लास्ट मंथ. नाउ प्रोपेल. प्रोपेलर आपने सुना होगा, जब नाव को चलाते हैं तो प्रोपेलर वर्ड यूज होता है, प्रोपेल. सो प्रोपेल, तो नाव को चलाने के लिए जो प्रोपेलर्स होते हैं, जब उनको हम घुमाते हैं तभी नाव चलती है. तो दिस इज प्रोपेलर, माने प्रेरक के रूप में इसको हम लोग सकते हैं. नाव को चलाने के लिए जो डंडे होते हैं उन्हें नोदक कहते हैं, प्रोपेलर. सो प्रोपेल एज अ वर्ब भी यूज होता है. प्रोपेल, दिस कम्स एज अ वर्ब. एंड प्रोपेलर, दिस कम्स एज अ नाउन. एंड इसकी जो स्पेलिंग है उसमें ओ भी होता है, प्रोपेलर. ऑल्दो इट इज शोइंग एरर इन दिस, बट इट्स देयर. सो दिस मीन्स प्रेरक और नोदक, नौका को चलाने वाला, प्रोपेल. अगर इसके वर्ब की बात करें तो प्रोपेल का मतलब है किसी चीज़ को ले चलना, घसीटना. हिंदी में इसे कहते हैं धकेलना, ठेलना. तो नाव चलाने के लिए जो हम लोग डंडे यूज़ करते हैं वो एक तरीके से नाव को पुश करते हैं, प्रोपेल, टू पुश. एंड इट्स मीनिंग इज टू इंस्टिगेट ऑल्सो, उकसाना और ढकेलना, प्रोपेलर. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर. द अपसर्ज. नाउ सर्ज का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत तेज़ी से बढ़ना. अपसर्ज माने उसी में और उछाल आना. इन फूड प्राइसेस फॉर सीरियल्स. नाउ दिस मस्ट बी नोन टू यू, फिर भी मैं इसको नोट कर देता हूँ. दिस इज अनाज, सीरियल्स, दैट इज अनाज. एंड फर्दर वी हैव
एंड वेजिटेबल्स. नाउ कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूट का मतलब है किसी चीज को बनाना. दिस इज कॉल्ड कंस्टिट्यूट एंड कंस्टिट्यूएंसी वर्ड इसी से बना है. नाउ कंस्टिट्यूट इज देयर, constituency is there, different words are there. तो कंस्टिट्यूट का मतलब है किसी चीज को फॉर्म करना, किसी चीज को शेप में लाना. कंस्टिट्यूट. कंस्टिट्यूएंट, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या हो सकता है. जो उस चीज को बनाए. कंस्टिट्यूट इज अ वर्ब एंड कंस्टिट्यूएंट जो उस चीज को कंस्टिट्यूट करे. एंड कंस्टिट्यूएंसी, obviously this comes as a noun, and constituently that will become the adverb. तो देखिए एक शब्द से इतने सारे शब्द हमने निकाल लिए और ऑब्वियसली सभी का मीनिंग अलग अलग है. तो कंस्टिट्यूट मतलब किसी चीज़ को फॉर्म करना, निर्माण करना. टू फॉर्म समथिंग, निर्माण करना. एंड रिलेट करने के लिए कंस्टिट्यूएंट तो चाहिए ही. जो तत्व निर्माण करने में सहायक होते हैं वही कंस्टिट्यूएंट होते हैं. कंस्टिट्यूएंट. अब निर्माण तो तभी होगा ना जब कोई कुछ होगा. उसका इंपॉर्टेंट जो अंग है, संगठक है. ठीक है. कंस्टिट्यूएंट का मतलब है इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं अंग, संगठक, संघटक, राइट. कंस्टिट्यूएंट. एंड कंस्टिट्यूएंट एज एन एडजेक्टिव जो यूज होता है उसका मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली, सभा, निर्वाचक भी होता है कंस्टिट्यूएंट. कंस्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधानकारी सभा. कंस्टिट्यूएंट असेंबली. कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधानकारी सभा. एंड कंस्टिट्यूएंसी का मतलब है वो प्लेस जहाँ चीज़ों को कंस्टिट्यूट किया गया हो. जैसे निर्वाचक क्षेत्र जो होता है तो उसे हम लोग कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं. निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र. जैसे जहाँ से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसे कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं. एंड कंस्टिट्यूएंटली एडवर्ब के रूप में आ रहा है जिसका मतलब है बनाते हुए. ठीक है. किसी चीज़ को बनाते हुए, बनाने के रूप से कंस्ट्रक्टिवली, कंस्टिट्यूएंटली. बनाते हुए. ठीक है. बनाते हुए. कंस्टिट्यूएंटली कुछ लोग अपना काम करते हैं, बनाते हुए काम करते हैं. बिगाड़ते नहीं हैं, बनाते हैं कंस्टिट्यूएंटली. तो फाइन ऑफ द फूड एंड बीवरेजेस. बीवरेजेस पेय पदार्थ होते हैं, फूड तो भोजन ही होता है. बीवरेजेस आपने रेस्टोरेंट वगैरह में जो आता है कि भाई ये हमारे बीवरेजेस हैं. सो दैट इज पेय पदार्थ लाइक ड्रिंकेबल आइटम्स होते हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, राइट. सो दिस इज ड्रिंकेबल आइटम्स, बीवरेजेस. एंड इसी में अगर बीवरेजेस की जगह ब्रीवरेजेस कर दिया जाए तो आपको बताना होगा कि BREVERA, ब्रीवेट, ब्रीव, ये वर्ड इसी से संबंधित हैं. थोड़ा सा अंतर है इसमें. एक वर्ड है ब्रीव, BREVE, और एक वर्ड है ब्रीवेट. तो ब्रीवेट एक आदेश पत्र होता है. ब्रीवेट, दिस कम्स एज अ नाउन, दैट मीन्स ऑर्डर, आदेश पत्र. सो मैंने इस वर्ड को इसलिए बताया क्योंकि इससे थोड़ा सा संबंधित है बीवरेजेस बोलने से. एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर.
subgroup that logged 10.3% and 17.7% were cereals and vegetables, inflation respectively. Cereals that account for almost one tenth of the CPI and logged double digit inflation for a 15th straight month also saw a month on month. अब देखिए ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन का मतलब है माह प्रति माह। एक्सेलरेशन इन इन्फ्लेशन विद राइस, वीट एंड कोएर्स का मतलब है भद्दा, राइट। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि हमें नोट करने चाहिए। एक्चुअली जिसमें ओ ए है, कोएर्स, दैट कम्स एज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है ऑकवर्ड, in Hindi we call it bhadda। एंड एक वर्ड होता है कोर्स, COERCE, बहुत इससे मिलता जुलता है। इसका मतलब है टू फोर्स, टू कंपेल, किसी को कंपेल करना, बाधित करना, कोर्स। इसको हम लोग कोर्स से रिलेट कर सकते हैं कि कोर्स पूरा करने के लिए टीचर्स को कई बार कोर्स करना पड़ता है कि भाई कोर्स पूरा करा दो। सीरियल ऑफ ज्वार, अ रूरल हिंटरलैंड। नाउ दिस इज रूरल तो देहाती है। नाउ दिस इज हिंटरलैंड, HINTERLAND। दिस इज हिंटरलैंड एंड दिस मीन्स भीतरी प्रदेश। समुद्र या नदी तट के पीछे का प्रदेश, भीतरी प्रदेश, हिंटरलैंड, हिंटरलैंड, भीतरी प्रदेश। एंड स्टेपल वर्ड इज देयर। स्टेपल पिंस आपने सुना होगा, STAPLE। स्टेपलर भी सुना होगा, नत्थी करना, किसी चीज को एड ऑन करना, स्टेपल करना। सो स्टेपल मीन्स टू एड ऑन, नत्थी करना, and a stapler is the best example to learn this word। all registering pulpable, pulpable का मतलब है गूदेदार, लाइक पल्पी जूस आपने सुना होगा, सो दैट इज पल्पेबल। दैट मीन्स प्रत्यक्ष। वो एक्चुअली पल्पेबल में PUL होता है, उसको भी नोट करेंगे। दिस इज पैल्पेबल, दैट मीन्स जिसे हम टच, छू सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टैंजिबल। सो दिस इज पैल्पेबल, PALPABLE, palpable, and this is adjective, that is tangible, or we can say touchable, जिसे हम कह सकते हैं स्पर्शनीय। and palpable, that comes like this is PULPABLE, palpable, गूदेदार, pulpy, right? so this is palpable, गूदेदार होना किसी चीज़ का। पल्पी ऑरेंज आपने सुना होगा, पल्पेबल। ऑलराइट, देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। गूदेदार, एंड हियर वी गो। सीक्वेंशियल, सीक्वेंस से बना है। प्राइस गेन्स, वेजिटेबल प्राइसेस वर बैक ऑन अ बॉयल। ऑन अ बॉयल का मतलब है किसी इसका खोलना। विद ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट सर्जिंग बाय ऑलमोस्ट 15% परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम अक्टूबर 2.8%, वाइल प्राइस गेन्स इन द पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब है जो खत्म हो जाए, यूज़ किया खत्म हो गया। नॉन पेरिशेबल का मतलब है जो खत्म ना हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ इशू की गई तो वो नॉन पेरिशेबल है। जैसे गद्दा इशू किया गया, तकिया इशू किया गया। अब आपको कोई ड्रिंक इशू की गई या फिर कोई खाने का आइटम इशू किया गया तो दैट इज डिस्ट्रॉयबल, ठीक है, खत्म होने वाला, खाया खत्म हो गया। एंड जो नॉन पेरिशेबल होता है वो खत्म नहीं होता है, इसी का ऑपोजिट है नॉन पेरिशेबल, ठीक है, जो ना खत्म हो। टमेटो स्वंग, अब देखिए स्विंग, स्वैंग, स्वंग, उछाल मारना। स्विंग का मतलब है उछलना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्विंग का यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रहा है, स्विंग, स्वैंग, स्वंग। लहरा देना, स्विंग माने लहराना, राइट। सो दिस इज स्विंग।
वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। दिस मीन्स झूलना, लहराना। और इतना ही नहीं, स्विंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है, साथ ही साथ स्विंग वर्ड नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। दैट मीन्स झूला, एंड दिस स्विंग इज कमिंग एज अ वर्ब। स्विंगिंग, झूला। अच्छा, स्विंग इनटू एक्शन एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है तुरंत सक्रिय होना, जैसे इमीडिएट एक्शन लेना। स्विंग इनटू एक्शन मीन्स टू बी एक्टिव इमीडिएटली, जैसे फादर को देखते ही आप पढ़ने बैठ जाते हैं, तुरंत एक्टिव होना, दैट इज कॉल्ड स्विंग इनटू एक्शन। एंड स्विंगेजिंग, स्विंगिंग का मतलब है टस से मस ना होने वाला। काफ़ी इसका डिस्क्रिप्शन है। फ्रॉम द लास्ट टू स्ट्रीट मंथ्स ऑफ साइजेबल डिफ्लेशन। नाउ अभी आपने पढ़ा इन्फ्लेशन, नाउ द वर्ड इज डिफ्लेशन। सो दिस इज रिलेटेड टू द सेम वर्ड, डिफ्लेट करना। और जिस तरह से इन्फ्लेट का मतलब है हवा भरना, उसी तरह से डिफ्लेट का मतलब है हवा निकालना। सो दिस इज डिफ्लेट एज अ वर्ब यूज हो रहा है, एंड दैट इज हवा निकालना। एंड डिफ्लेशन इसी से बना है, जो कि इसका नाउन है। ओके, काफ़ी टायरिंग हो रहा है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं इस पैसेज में। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी एंजॉइंग। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यू आर गेटिंग इट बेल। टू अ मोर दैन 11% ईयर ऑन ईयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन लास्ट मंथ, द एक्सटेंट का मतलब है हद, कहते नहीं इस हद तक वो जा सकता है। एक्सटेंट माने लिमिट ऑफ इंक्रीज कुड बी ट्रूली गॉज्ड। गॉज माने होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को चेक करना, प्रिवेंट करना, GAUGE, गॉज। सो उस पर कंट्रोल करने का मीनिंग इस पे आता है कि कोई चीज़ बिना किसी लिमिट के बढ़ी जा रही है तो आप उसे गॉज करते हैं, जिससे कि वो एक सर्टन लिमिट तक जाए। GAU DAUGE, गॉज। एंड इसी से बना है गॉजर, नापना, मापदंड, टू मेजर। एंड गॉजर जो वर्ड है वो इसी से बना है, दैट मीन्स मापक, जो मापने के लिए यूज होता है। From the fact that prices surged a steep 41% from the preceding month's levels as per data aggregated. Now, aggregate word is there, and this is aggregate, that comes as a verb, and aggregation, aggregate, aggregate verb है, और aggregation that comes as a noun. एंड आपने इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ सुना होगा अपने परसेंटेज में, कि मेरा एग्रीगेट परसेंटेज इतना आया है और वैसे मेरे इतने मार्क्स हैं। तो पूर्ण योग, कुल, टोटल, एग्रीगेट, पूर्ण योग। अक्सर 12th में लोग कहते हैं मेरा एग्रीगेट परसेंटेज, PCM में मेरे इतने मार्क्स हैं और मेरा एग्रीगेट परसेंटेज इतना है। आई होप यू रिमेंबर, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहता है कि एग्रीगेट परसेंटेज मेरा टोटल आया है इतना 70% या 76%, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जोड़ करके मेरे इतने मार्क्स आए हैं, एग्रीगेट। From the fact the prices surged a steep 41% from the preceding month's level as per data aggregated on the Center for Monitoring Indian Economy's website and the key masala। देखिए यहाँ पे हिंदी वर्ड है और ये यही रहेगा, वैसे स्पाइसेस कह सकते हैं। इसेंशियल माने ज़रूरी, ऑफ जिंजर एंड गार्लिक। जिंजर मतलब अदरक, गार्लिक मतलब लहसुन। रजिस्टर्ड मोर देन 100% रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 7th and 3rd months रिस्पेक्टिवली। ओके देन, इतना हमने डिस्कशन किया और इतने सारे वर्ड्स कलेक्ट हो गए हैं, तो बाकी का पैसेज हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। और इन सभी वर्ड्स पे आप सेंटेंसेस बनाएं। सो मेनी वर्ड्स वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम दिस पैसेज।
दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ आर ऑब्जर्वेशन, आर ओवरऑल एनालिसिस, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. सो इन सभी वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है. एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, so that you can get to know videos as per ऐसे ही रिलीज़ होगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड डू हिट द icon, that bell icon, so that it can give you alert on quick basis. And this is our mobile number. You can call this number to join our best English speaking course also. We are available on Telegram as well. You can search this best English speaking course on the Telegram as well. And to know more about our speaking course, you can go here, and there is notification of our new batch, so that you can join. So that's very important to have a very good coverage of grammar. और न्यूज़पेपर रीडिंग से आप देख रहे हैं कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कैसे हम उसमें रिलेट करते हैं वोकैबलरी में. मास्टर इंग्लिश एंड लीड योर ग्रुप. वोकैबलरी बिल्डिंग गिव्स यू एनर्जी टू मेक योर वर्ड्स proper as per its usage, and the pronunciation is the beauty of language. जितना अच्छा pronunciation होगा उतना अच्छा impression होगा, and you will be given a certificate also. And for more details you can call at this number. Thank you for watching this whole video, and do share your comments. कैसा लगा ये आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. साथ ही साथ stay tuned with us. Best wishes to you all. जय हिंद.